Hello students, I am teaching you Python. This is chapter number 9, Flow of Control. And this video is video number 3 for class 11th. Now, in my previous lecture, I told you about else statement of a loop. So else statement can be there in if also and loop also. So this we have done in our previous class. Now we are starting with jump statement. As I already told you that loop can stop its execution in two different ways. One is naturally when the condition will become false, and second is with the help of break or continue statement. So if you want to stop the execution or iteration of a loop, you can check the condition at every time. Once the condition is false, it will automatically stop. And if you want to stop the loop in between, then you can use break or continue. So let's understand what are the meaning of these statements. The break statement first. The break statement enable a program to skip over a part of the coding. A break statement terminates the very loop. This loop will be terminated as soon as break statement is encountered. See, here is the example given. While a test condition, statement 1 will be executed, then again a condition is there. If this condition is true, then this break will execute, means the control will go out of the loop, means loop is over. This condition is tested, it was true. Even after the true, break statement has terminated the loop. If this one condition is false, then it will execute these two statements and re-execute the while loop. So if condition will become false, it will execute the loop again and again. Now, two ways are there to come out of this loop. One way is, if this while test condition is becoming false, it will come out. Or second thing is, if this if condition is becoming true, then also it is coming out of the loop. So there are two ways to stop the execution of the loop. Same is the case for for loop. There is no difference between for loop and while loop. With the help of break statement, you can stop the execution of the loop, for loop or while loop. See here, one example is given. The following code fragment gives you the example of break statement. See, ABC is equal to 0. So 3 variables are taken. For I in range 1 to 21, means 1 to 20, this loop will work 20 times. A is equal to input, enter first number. B is equal to input, enter second number. If B is equal to 0, then division by 0 is not possible. So break. Else, calculate C is equal to A upon B and print the value of C. Once A and B both are non-zero values, it will go back to for loop again. Again it will input new value of A and B. It will again check B should not be 0. If B is not 0, then again it will execute it. So how many times it will execute it? It will execute from 1 to 20. पर अगर तुमने b 0 डाल दिया at the time of input, तो here in this line input करते हुए आपने 0 डाल दिया, तो denominator cannot be 0. It will execute the break statement, and once it will execute the break statement, it will come out of the loop and the program is over. So lastly, it will end after 20 times. But it will end in between also if you enter B is equal to 0. If you enter B, it will terminate before the last statement is executed. If you are not entering B is equal to 0, then it will work 20 times. Let's continue. The above code fragment intending to divide 10 pair of, okay.
This I have already explained you. See, these are the inputs, and if you are entering B as 0, then division by 0, error, aborting. Okay, now let's understand this one more program to implement guess the number game. It is a game. This program is a game where random number is being generated. Python generates a number randomly in the range 10 to 50. तो 10 से लेकर 50 तक कोई भी एक randomly number generate होगा, and the user is given 5 chances to guess the number. तुम 5 number enter करोगे. If the number you are entering and the number generated by the system automatically randomly, अगर वो match कर गया तो you are a winner, otherwise you are not a winner. So here it is written, if the user guesses matches the number generated by the system, then you win. Okay, if however cannot guess the number 5 times, 5 attempts you will get, then you will lose. So let's see the program first. This is the coding of a random function. Random dot randint means random integer, lower limit and upper limit. Okay, here the lower limit and upper limit is given 10 to 50. Import करना नहीं भूलना है. Import random. Random is a library which is imported. Number is equal to random dot randint 10 to 50. तो कोई भी एक नंबर 10 to 50 के बीच में नंबर में असाइन हो जाएगा. We cannot know कौन सा नंबर होगा. ये प्रिंट कर सकते हैं इसको हम, but first we will compare it with the input that we are giving. Counter is equal to 0 while counter is less than 5. तो काउंटर क्या होगा, पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा. तो हम 5 टाइम्स ये वाला लूप चलाएंगे. ओके, गेस इज इक्वल टू इनपुट एंटर एनी नंबर. तो तुम 10 से लेकर 50 तक कोई भी नंबर इनपुट करोगे, एंड इफ द नंबर यू हैव एंटर्ड एंड इफ द नंबर जनरेटेड बाय द सिस्टम रैंडमली आर इक्वल, मीन्स यू आर ए विनर. एंड ब्रेक क्या होगा, ब्रेक बाहर आ जाएगा प्रोग्राम. ठीक है. इफ इट इज नॉट इक्वल देन यू विल गेट अनदर चांस. तो इफ कंडीशन क्या हुई, ट्रू नहीं हुई तो फॉल्स हो गई. एल्स कंट्रोल +1. कंट्रोल मतलब फर्स्ट चांस मिलेगा. वो पहले 0 चांस था, 0 काउंटर 0 था पहले, अब काउंटर 1 हो गया. इट विल अगेन आस्क यू गेस द नंबर, यू विल एंटर 1 मोर नंबर. अगर फिर दोबारा से जो तुमने नंबर डाला वो इक्वल नहीं है नंबर के, दिस नंबर इज नॉट इक्वल टू दिस नंबर, तो अगेन यू विल गेट थर्ड चांस एंड फोर्थ चांस एंड 5 चांसेस यू विल गेट. आउट ऑफ दोज 5 चांसेस अगर नंबर मिल गया देन यू विल बी विनर एंड ब्रेक विल कम आउट ऑफ द लूप. Okay, in this way it will execute. Let's see the output of this program. First you have entered 31, then you have entered 23, 34, 40, 55 times you have entered. You lose because the number generated by the system was 28. अगर हम यहाँ कहीं पे 28 एंटर कर देते तो मैसेज आता you are a winner, and then it will not accept all 5 numbers. Suppose first number is 31, सेकेंड नंबर मैंने 28 डाल दिया एंड इट इज मैचेस, तो उसी टाइम आ जाता कि यू आर ए विनर. नो मोर 3 नंबर्स विल बी एंटर्ड बाय यू. क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होगा, वो लूप से बाहर आ जाएगा. ये देखो, ब्रेक स्टेटमेंट से हम लूप से बाहर आ जाएंगे, और जैसे ही हम ब्रेक स्टेटमेंट से लूप से बाहर आएंगे तो प्रोग्राम के बाकी जो आइट्रेशन बचे होंगे दैट विल बी कैंसल्ड. ओके, तो इस तरह से ब्रेक वर्क करता है. यहाँ एक्सप्लेन किया है हाउ दिस ब्रेक इज वर्किंग. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. नाउ यहाँ यही बताया हुआ है कि अगर ट्रू होता है तो एग्जीक्यूशन दोबारा होती है, और ब्रेक होता है तो ये आउट ऑफ द लूप चला जाता है. नाउ नेक्स्ट जंप स्टेटमेंट इज कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट. अब हम समझते हैं कि कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट से कैसे जंप करते हैं. सी है, देयर इज अ डिफरेंस इन कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट एंड ब्रेक स्टेटमेंट. इन कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट ओनली 1 आइट्रेशन इज कैंसल्ड. मतलब मैं ये तुम्हें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि इफ देयर इज ए लूप और उस लूप में 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स है और यहां कहीं ब्रेक लगी है, तो जैसे ही ब्रेक लगेगा इट विल कम आउट ऑफ द लूप.
बट कंटिन्यू में ऐसा नहीं होगा. In continue, if you have written a loop and 1 2 3 4 5 in between कहीं continue है, then it will cancel only these two statements. It will start with the next iteration. तो अगर 1 to 5 there are 5 executions, तो फर्स्ट में कंप्लीट होगी, सेकंड में कंप्लीट होगी. जैसी कंडीशन ट्रू होती है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट विल स्किप ओनली 2 स्टेटमेंट्स. तो ये सिंपली बस पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट, पूरा लूप को टर्मिनेट नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक आइट्रेशन को टर्मिनेट कर रहा है. तो ब्रेक इज गोइंग टू टर्मिनेट द होल लूप, बट कंटिन्यू इज गोइंग टू टर्मिनेट ओनली वन आइट्रेशन ऑफ द लूप. एक आइट्रेशन कैंसिल कर देगा वो. ये ऐसा ही कुछ यहाँ बताया हुआ है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो. ठीक है, इट विल जस्ट टर्मिनेट वन स्टेटमेंट. फॉर द फॉर लूप कंटिन्यू कॉजेज द नेक्स्ट आइट्रेशन, मतलब वो कैंसिल नहीं कर रहा आइट्रेशन को, नेक्स्ट आइट्रेशन बाय अपडेटिंग द लूप वेरिएबल विद द नेक्स्ट वैल्यू इन द सीक्वेंस. फॉर द व्हाइल लूप द प्रोग्राम कंट्रोल पासिस द कंडीशन टेस्ट गिवन एट द टॉप ऑफ द लूप. ये एग्जाम्पल दिए, देखो एग्जाम्पल में समझते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है. a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c मीन्स 3 वेरिएबल्स आर असाइंड 0 for I in range 0 to 3. Print enter 2 numbers. तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 0 1 2, 3 टाइम्स चलेगा. मीन्स 0 1 2. A इज इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, B इज इक्वल टू इनपुट एंटर सेकेंड नंबर. 2 नंबर इनपुट करवा लिए. इफ B इज 0 then denominator cannot be 0. enter again. अब देखो enter again कह रहे हैं, मीन्स continue will take it back to again here, enter first number, enter second number, फिर दोबारा से यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी. अगर ये ब्रेक होता तो द कंट्रोल विल गो आउट ऑफ द लूप. बट क्योंकि ये कंटिन्यू है तो ये नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाएगा. ठीक है, वो आइट्रेशन स्किप कर जाएगा क्योंकि हमने एक बार 0 डाला है. अगली बार हो सकता है हम 0 ना डालें. तो देर आर 3 आइट्रेशंस 0 1 2. अगर मैंने एक बार 0 डाल भी दिया तो बाकी दूसरी बार 0 डालूं या ना डालूं. ठीक है, तो ब्रेक विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बट कंटिन्यू विल गो टू द नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ द लूप. एल्स अगर मैंने 0 नहीं डाला तो c इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b. प्रिंट द क्वोशिएंट इज c. इन दिस वे इट विल with the output. enter 2 numbers 5 0. देखो 0 एंटर कर दिया. once it is enter 0 denominator cannot be 0. try again. then second time I have entered 5 2, third time I have entered 6 2. so 2 more iterations are working properly. So this is the difference between continue statement and break statement. Sometimes you need to abandon iteration for a loop permanently. तो कुछ सिचुएशन में हम आइट्रेशन को परमानेंटली रिमूव करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट चाहिए. एंड ऑन द अदर हैंड समटाइम वी वांट टू स्किप ओनली वन आइट्रेशन, उसके लिए हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट चाहिए. तो दोनों स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर जंप स्टेटमेंट्स और अलग अलग सिचुएशन में दोनों काम आती हैं. प्रोग्राम टू इलिस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट. तो दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या है. हालांकि डिफरेंस मैं तुम्हें समझा चुका हूं, फिर भी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. प्रिंट द लूप विद ब्रेक प्रोसीजर फॉर आई इन रेंज 1 to 11. मतलब 1 से लेकर और ये 10 तक 10 टाइम्स लूप चलेगा. 11 इज अपर लिमिट. इफ आई मोड 3 इज इक्वल टू 0 ब्रेक, तो क्या होगा? 1 आउटपुट आएगा, फिर 2 आउटपुट आएगा. जैसे ही 3 आएगा तो 3 तो डिविजिबल बाय 3 है, ब्रेक हो जाएगा. तो कंट्रोल विल गो आउट ऑफ द लूप. तो आउटपुट आएगा सिर्फ 1 2, बस यहाँ जाके ब्रेक हो जाएगा. लेकिन ये दूसरा एग्जांपल दिया देखो, प्रिंट द लूप विद इन द कंटिन्यू प्रोसीजर फॉर आई इन रेंज 1 to 11. वही 1 से लेके 10 तक चल रहा. इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 देन कंटिन्यू, मतलब प्रिंट नहीं करेगा, नो प्रॉब्लम. तो वो क्या करेगा? 1 2 3 तो डिविजिबल बाय 3 है तो इट विल स्किप. 4 5 अगेन 6 इज डिविजिबल बाय 3, इट विल स्किप 6. 7 8 9 9 इज अगेन डिविजिबल बाय 3 तो 9 को भी स्किप कर देगा ये.
11 तो आउट ऑफ लूप हो गया, तो देन इट विल कम आउट ऑफ द लूप व्हेन द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड, मीन्स आई इज इक्वल टू 10 के लिए जब एग्जीक्यूट होगा तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, इन दिस वे in break statement only this will be the output, in continue statement this will be the output, only the number which are divisible by 3 here, here and here will be skipped, means 3, 6 and 9 will be skipped। पर यहाँ तो लूप ही ब्रेक हो गया, रुक गया। इसका आउटपुट जरूर दिया होगा, यहाँ कहीं नहीं दिया। चलो इसको प्रोग्राम को आप टाइप करो पाइथन शेल पे और आउटपुट देखो क्या मैंने ये आउटपुट ठीक लिखा है, चेक इट। यहाँ पर भी आउटपुट दिया होना चाहिए था कहीं ना कहीं, चलो कोई बात नहीं, तो यू कैन चेक इट। ओके, लूप एल्स स्टेटमेंट। नाउ इन लूप ऑल्सो देयर इज एल्स स्टेटमेंट लाइक इफ। तो अगर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो वो एल्स में नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो नेचुरली लूप की कंडीशन को फॉल्स करने के बाद लूप ओवर होता है तो वो एल्स स्टेटमेंट में जाएगा। एग्जांपल में दे रहा हूं, फॉर आई इन रेंज 1 to 10, ये स्टेटमेंट हुई। मैंने एल्स में क्या लिखा, एल्स प्रिंट आउट ऑफ लूप। जब मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं प्रिंट आउट ऑफ लूप, तो ध्यान से देखो क्या होगा कि अगर ये पूरी कंडीशन कंप्लीट कर गया 1 2 3 4 5 9 तक, तो जैसे ये 10 होगा तो इट विल गो आउट ऑफ द लूप एंड गो टू एल्स स्टेटमेंट। और अगर ये बीच में ही कहीं ब्रेक हो गया, तो ब्रेक हुआ तो कंडीशन तो फॉल्स कभी होगी नहीं, बीच में ही टर्मिनेट हो गया, तो इट विल नॉट गो टू एल्स स्टेटमेंट। तो else statement will be the statement when loop condition will become false। अगर बीच में कहीं ब्रेक हो गया तो लूप स्टेटमेंट तो फॉल्स हो ही नहीं, तो वो else स्टेटमेंट को स्किप कर जाएगा। तो ये ऐसा ही समझाया इस पैराग्राफ में। रीड दिस पैराग्राफ्स वेरी thoroughly, is the example given, okay, and with the help of an example it is clearly explained how the break statement, how the else statement, all these are executing। देखो इसमें देखो फर्स्ट एग्जांपल में 4 element in sequence execute this statement, this statement, this statement, this statement, then again go back to the next statement, again execute these all statements, again go back, again execute। in this way it will execute again and again, and once this is over it will go to the out of loop and go out। okay, this is the working of loop। ऐसे ही while loop का भी सेम ही होता है, there is no difference। तो जब ये सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगी या जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इट विल गो आउट ऑफ द लूप। पर अगर एल्स अगर होगा इसमें तो क्या होगा, देखो it will first test the condition, then execute all these statements, again it will test the condition, execute all these statements। कब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये इस सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ध्यान से देखो कि ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये बार बार एग्जीक्यूट हो रही है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक एग्जीक्यूट हो रही है। पर ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होंगी जब वो फॉल्स हो जाएगा। वंस इट इज एग्जीक्यूटेड इट विल गो आउट ऑफ द लूप। सेम इज द केस विद व्हाइल, कि ट्रू होगा तो इट विल एग्जीक्यूट अगेन, अगेन इट इज ट्रू इट विल एग्जीक्यूट अगेन, अगेन एंड अगेन इट विल एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। वंस इट विल बिकम फॉल्स इट विल एग्जीक्यूट दिस सेट ऑफ स्टेटमेंट ओनली वन टाइम। और कितनी कब, जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये एल्स है, फॉर लूप के साथ एल्स है। इफ के साथ एल्स का मीनिंग मैं पहले बता चुका हूं तुम्हें, वो बिगिनिंग में मैंने आपको समझाया था। नाउ दिस एल्स इज विद लूप, विद फॉर और व्हाइल लूप। ओके, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इस एग्जांपल को
थोरोली रीड करो, सेम कंसेप्ट इज एक्सप्लेन्ड विद मल्टीपल एग्जांपल्स। ओके, तो होप कि तुम्हें समझ में आ गया है। यू कैन रीड मोर एंड मोर एग्जांपल टू मेक योर कंसेप्ट मोर स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर। ओके, दिस इज अगेन एन एग्जांपल। इन सभी एग्जांपल्स में सेम कंसेप्ट को बार बार एक्सप्लेन किया विद प्रॉपर explanation. Okay, now let's do next program to input some numbers repeatedly and print their sum। तो हमने बहुत सारे नंबर इनपुट करवाने हैं वन बाय वन। ये नहीं पता कि कितने नंबर्स हैं, मे बी 2 नंबर्स, मे बी 5 नंबर्स, मे बी 20 नंबर्स। तो वन बाय वन वी विल इनपुट सम नंबर्स एंड कैलकुलेट सम। द प्रोग्राम एंड व्हेन द यूजर से नो। जब यूजर यस कहेगा तो और नंबर इनपुट करना होगा, फिर यस कहेगा फिर और नंबर इनपुट करना होगा। जब नो होगा तो टर्मिनेट हो जाएगा लूप और आउटपुट आ जाएगा कि द सम इज दिस। ठीक है ना। प्रोग्राम अबाउट व्हेन द नंबर एंटर्ड इज लेस देन 0। और अगर वो यस नो का क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो नेगेटिव नंबर एंटर कर रहा है, तो भी प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब लूप के टर्मिनेट होने के 2 चांसेस हैं। वन, you don't want to enter more numbers, you are saying no for more numbers। और सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड, जब आप नेगेटिव नंबर इनपुट कर दोगे। तो देखते हैं प्रोग्राम का सॉल्यूशन। बड़ा अच्छा प्रोग्राम लग रहा है मुझे ये। काउंट इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए 0 से। आंसर इज इक्वल टू यस इनिशियली, वाई इज ए करेक्टर। ठीक है, वाइल आंसर इज यस डू दिस प्रोसेस, दिस इज ए लूप। देखते हैं क्या कर रहे हैं। यस पे नंबर इज इक्वल टू इनपुट एन नंबर, इफ नंबर इज लेस देन 0। देखो नेगेटिव नंबर इनपुट किया तो एंटर्ड नंबर इज बिलो 0, ब्रेक। ब्रेक से तुम्हें अभी भी बताया था क्या होगा, ब्रेक से ये आउट ऑफ लूप चला जाएगा। तो फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इट विल गो टू दिस वन स्टेटमेंट। पर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर ब्रेक नहीं होगा, फिर ये दोनों स्किप हो जाएंगी लाइनें। और फिर कहाँ आएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। आंसर इनपुट, डू यू वांट टू एंटर मोर नंबर, तुम करोगे यस, और जैसे यस करोगे तो दिस विल गो बैक टू द कंडीशन अगेन। इट विल अगेन एग्जीक्यूट द सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट। अगर तुमने नेगेटिव नंबर इनपुट किया तो ब्रेक हो जाएगा, अगर तुमने पॉजिटिव नंबर इनपुट किया तो सम हो जाएगा, और तुमने यस डाला तो ये वहां चला जाएगा। और अगर यहां पर तुमने नो डाल दिया तो क्या होगा, नो डाला तो भी ये यहां तो जाएगा एक बार, लेकिन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एज सुन एज दिस कंडीशन विल बिकम फॉल्स, कंट्रोल विल गो टू द एल्स स्टेटमेंट। अभी समझाया था कि एल्स स्टेटमेंट में कब आता है, जब नेचुरली वो फॉल्स होता है। मीन्स मैं इसको कह रहा हूं, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो नेचुरल टर्मिनेशन ऑफ लूप होगा, और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो जंप स्टेटमेंट से प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, फंक्शन लूप टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां आगे प्रिंट नो यू एंटर्ड दिस मेनी नंबर सो फार एंड प्रिंट द सम ऑफ द एंटर्ड नंबर इज सम। तो सम तो दोनों केस में आएगा। ठीक है, लेट्स सी द आउटपुट। इनपुट हमने किया 3, डू यू वांट टू एंटर मोर, यस। एंटर किया 4, डू यू वांट टू एंटर मोर, यस। 5 एंटर किया, फिर क्या किया, नो कर दिया अब हमने। तो 5 + 4 + 3, तीनों का सम आ गया। ठीक है, यू हैव एंटर्ड 3 नंबर सो फार एंड इट इज 12। अगेन इट इज एग्जीक्यूटिंग। पहले हमने 2 किया, डू यू वांट टू एंटर मोर, यस। -3 इनपुट कर दिया, नेगेटिव नंबर आ गया। एंटर्ड नंबर इज बिलो 0, सो द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज अबॉर्टिंग एंड द सम इज 2। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, इसको आप ध्यान से देखो, पाइथन शेल पर टाइप करके रन करके देखो कि आउटपुट ठीक आ रहा है। ठीक है, प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड टेस्ट इफ इट इज ए प्राइम नंबर और नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमने चेक करना है कि एक नंबर प्राइम है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जो 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं। मीन्स आई वॉन्ट टू चेक n इज ए प्राइम नंबर और नॉट, तो मुझे एक 1 को और n को छोड़कर इन बिटवीन जितने भी नंबर हैं 2, 3, 4, 5 n-1 तक, तो अगर ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा देन इट इज ए प्राइम नंबर।
और अगर किसी एक से भी डिवाइड हो गया तो देन इट इज नॉट प्राइम। 1 और इटसेल्फ से तो सारी नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो उसे हमें चेक ही नहीं करना। ठीक है, तो देखो अब एक चीज और ध्यान रखो कि n/2 के बाद जितने भी नंबर होंगे उससे नंबर कोई भी डिवाइड नहीं होता। ठीक है ना, सपोज मैं अज्यूम करो कोई भी एक नंबर है से 17, मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं 2 3 4 5 8 2 16, अगर 8 से आगे चेक करूँगा तो वो तो नंबर कभी किसी को डिवाइड कर ही नहीं पाएगा, तो हम हाफ तक ही चेक कर लेंगे, इतना सफिशेंट है। तो मीन्स 17/2 तक चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रोग्राम में क्या किया हुआ है। नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, लिमिट इज इक्वल टू इंट नंबर बाय 2 + 1। मैंने आपको बताया ना कि 17/2 + 1 क्या हो गया, 8 + 1 9 हो गया। तो हम 9 तक ही चेक कर लेंगे अगर हमने 17 को चेक करना है, तो मीन्स n/2 + 1 तक ही चेक करेंगे। अगर वो डिवाइड हो गया तो देन इट इज नॉट प्राइम, डिवाइड नहीं हुआ तो इट इज अ प्राइम नंबर। ओके, तो लिमिट कहाँ तक बना दी हमने, नंबर बाय 2 + 1 तक। ठीक है, और फॉर i इन रेंज 2 to अपर लिमिट, 2 से लेकर लिमिट, क्योंकि 1 से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाएंगे, तो हमने लिमिट तक ही चेक करना है। रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर mod 2। इफ द रिमाइंडर इज 0 देन प्रिंट नंबर इज नॉट प्राइम, क्योंकि आई से डिवाइड हो गया, वो आई से डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नहीं है, और जब प्राइम से डिवाइड किसी नंबर से डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नहीं है। तो ब्रेक मतलब लूप से बाहर आ जाओ, हमें पता लग गया वो नॉट प्राइम है, तो वाई टू चेक अगेन एंड अगेन। ठीक है, अगर वो डिवाइड नहीं हुआ फिर क्या होगा, अगर वो डिवाइड नहीं हुआ देन इट विल गो बैक टू द नेक्स्ट लूप। अब 2 से 3 से चेक करेंगे, फिर 4 से चेक करेंगे। अब इसको मैं तुम्हें एग्जीक्यूशन करके दिखाता हूं, देखो कैसे होगा। सपोज आई वांट टू चेक 7 इज ए प्राइम नंबर और नॉट। मैंने इनपुट क्या किया, 7 कर दिया। इट विल चेक विद 2, क्या 7 2 से डिवाइड होता है, नो। देन इट विल चेक विद 3, क्या 7 3 से डिवाइड होता है, नो। देन 4, लिमिट हमारी 4 तक थी, 4 तक किसी से डिवाइड नहीं हुआ, तो हम प्रिंट करेंगे कि यस इट इज ए प्राइम नंबर। पर रिज्यूम करो तुम 9 चेक करना चाह रहे हो, इफ यू वांट टू चेक 9 इट इज डिविजिबल बाय एनी नंबर और नॉट, इट विल चेक विद 2, इज इट डिविजिबल बाय 2, नो। देन इट विल चेक विद 3, यस इट इज डिविजिबल। तो डिवाइड हो गया तो यहां से ही ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। वी विल नॉट चेक 4 5 6 एटसेट्रा, हम इनसे चेक ही नहीं करेंगे। जैसे ही वो डिवाइड हुआ तो हमने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक स्टेटमेंट विल स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। ये देखो ध्यान से, ये ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया कि जैसे ही वो डिवाइड हो जाए तो गो आउट, और डिवाइड नहीं हो रहा तो चेक द नेक्स्ट नंबर, देन अगेन चेक द नेक्स्ट नंबर। तब तक चेक करते रहना है जब तक उसका कोई फैक्टर नहीं मिल जाता, और फैक्टर मिला ही नहीं तो क्या होगा, देन इट इज ए प्राइम नंबर। ओके, बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया मैंने आपको ऑलरेडी। नेस्टेड लूप, दिस कंसेप्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर हम बहुत सारे प्रोग्राम्स भी करेंगे। ठीक है, तो इन प्रोग्राम्स को हम ध्यान से देखेंगे। देखो, तो हाउ टू डू ऑल दीज प्रोग्राम्स, जस्ट वेट अ मिनट। नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप मीन्स लूप विद इन लूप। देखो मैं एक तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी ड्राइंग तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो साइकिल तो बना ही लूँगा मैं। नाउ दिस व्हील इज कनेक्टेड विद द pedal with the help of a chain. This is a bicycle and this bicycle is connected with a chain. तो अगर मैं एक रोटेशन करता हूं पेडलिंग की, तो क्योंकि पिछले वाला जो व्हील है वो पेडल से कनेक्टेड है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पेडल, इसका जितना सर्कमफ्रेंस है उसके अकॉर्डिंग ये भी रोटेट करेगा साथ। मैं ये कह रहा हूं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द पेडल इज 3 टाइम्स, आई एम सेइंग 3x,
एज कंपेयर टू दिस व्हील x। तो ये जो सर्कल है इसका पैरामीटर x है और ये जो सर्कल है इसका पैरामीटर 3x है। तो मतलब मैं एक पेडल लगाऊंगा तो ये व्हील 3 टाइम्स घूमेगा, फिर दोबारा एक पेडल लगाऊंगा तो ये व्हील फिर 3 टाइम्स घूमेगा, क्योंकि उसका सरकमफ्रेंस में डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने 10 पेडल्स लगाए तो आप बड़ी फटाफट इजीली कह दोगे कि सर 30 टाइम्स हमारा व्हील घूमेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। somehow we can do the same concept in Python also, कि for first iteration do this 3 times, for second iteration again do the same thing 3 times, for third iteration do this 3 times। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला काम बार बार हमें करना है। ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं एक लूप लगाऊंगा, फोर लूप। इस फोर लूप के अंदर दोबारा से एक फोर लूप लगा दूंगा। इफ आई एम डूइंग इट 3 टाइम्स, ये है 1 2 5 और ये है 1 2 3, तो क्या होगा इन स्टेटमेंट के साथ, कितनी बार ये एग्जीक्यूट होंगी स्टेटमेंट्स, 3 5 15 टाइम्स। कैसे, जब ये 1 होगा तो 1 2 3 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा, फिर जब ये 2 हो जाएगा तो फिर 3 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये 3 हो जाएगा तो ये 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो दिस लूप विल वर्क 5 टाइम्स, दिस लूप विल वर्क 3 टाइम्स विद एवरी आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप। इसको मैं कह रहा हूं आउटर लूप, इसको कह रहा हूं मैं इनर लूप। ठीक है, तो टोटल 15 टाइम्स ये एग्जीक्यूशन होगा। देखो विद एग्जांपल समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नेस्टेड ऑफ लूप का। For I in range 1 to 6 and for j in range 1 to I है, ध्यान से देखना यहाँ। तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम में I 1 है तो ये 1 से लेकर 1 तक चलेगा। दूसरी बार I 2 हो जाएगा तो 1 से लेकर 2 तक, मतलब 1 2 चलेगा। थर्ड टाइम I will become 3 तो 1 से लेकर 3 तक 1 2 3 चलेगा। एंड नेक्स्ट टाइम 4 टाइम I will become 4 तो 1 2 3 4। जाना कहाँ तक है, लेस देन 6 का मतलब 5 तक, 1 2 3 4 5। तो इस तरह का कोई आउटपुट आना चाहिए। पर देखते हैं प्रिंट क्या कर रहे हैं। प्रिंट कर रहे हैं हम स्टार एस्टरिक, दिस स्पेशल सिंबल वी आर प्रिंटिंग। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट विल बी 1 स्टार, देन 2 स्टार्स, then 3 stars, then 4। ठीक है, इन दिस वे ये देखो ये आउटपुट दे भी रखा है। ठीक है, ये 4 टाइम्स आउटपुट दे रखा है, 1 2 5, इट शुड कम आई से कम आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आउटपुट ठीक है ना। फिफ्थ रो क्यों नहीं आएगी, देखो ध्यान से समझो, इतना ही आएगा जो जितना मैंने प्रिंट कर दिया आपके सामने, 4 स्टार्स ही आएंगे, क्योंकि आई तक तो नहीं जाएगा ना, दिस इज द अपर लिमिट। तो यहाँ 5 तक चलेगा, लेकिन यहाँ पर एक काम हो रहा है, I+1 नहीं लिखा, यहाँ पर आई लिखा है। ओके, तो इट विल बी दिस। ये उसी एग्जीक्यूशन को दूसरे एग्जाम्पल से सिखाया। नाउ देर आर ए नंबर ऑफ एग्जाम्पल टू प्रूव द सेम कंसेप्ट अगेन एंड अगेन। ओके, दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल टू शो द वर्किंग ऑफ नेस्टेड लूप। You read all these points very carefully. ठीक है, for a is equal to 0 inner loop will be iterated twice and so on. तो read all these concepts, very important. This is again an example to explain you the nesting of loop with the help of a and b. ठीक है, तो इसका आउटपुट ये दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझो इनको सबको। ये एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सोल्ड एक्सरसाइज में भी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझो। द ब्रेक स्टेटमेंट इन द नेस्टेड लूप, इफ द ब्रेक स्टेटमेंट अपीयर्स इन द नेस्टेड लूप देन इट विल टर्मिनेट द वेरी लूप ओनली। वेरी लूप का मतलब ये कि नेस्टेड को ही टर्मिनेट करेगा, ये आउटर को नहीं। अगर एक लूप बना है और उस लूप के अंदर एक और लूप है, तो और अगर यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट लगा ना, तो ये सिर्फ इनर को ही ब्रेक करेगा, आउटर को ब्रेक नहीं करेगा। आउटर को ब्रेक करने के लिए ब्रेक हमें यहां लगाना पड़ेगा। ठीक है,
तो break statement will work in nested loop. It will terminate only one loop, not both the loops. Okay, this is again a program number 20, program that search the prime number from 15 to 25. 15 से लेकर 25 तक सारे प्राइम नंबर सर्च कर रहे हैं हम इसमें, वही नेस्टेड लूप की हेल्प से कर रहे हैं। प्राइम नंबर का कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, इस प्रोग्राम को अच्छे से करो आप बुक से, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। नाउ आफ्टर दिस सोल्ड एक्सरसाइज आप करोगे और अनसोल्ड के प्रोग्राम्स भी सारे करोगे, ठीक है। तो सोल्ड एक्सरसाइज बुक में दी हुई है, यू प्लीज डू इट। थैंक यू।